कुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः. Janmashtami, the celebration of Lord Krishna's advent on this earthly planet, had arrived. जन्माष्टमी आई गई, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस. For the past 3 years, I had celebrated this topmost of all Vaishnava holidays in India. 3 साल इस विशेष उत्सव को मैंने भारत में मनाया था. The land of Lord Krishna's appearance, वही भारतवर्ष जहां भगवान ने अवतार ग्रहण किया. Although it was not a declared public holiday, hundreds of millions of Indians faithfully remembered Krishna, putting aside all other daily responsibilities in order to chant Krishna's glories throughout the day in their homes and at temples with fasting until midnight. ये जन्माष्टमी जो थी वो कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं था भारत में, जो सबके लिए कॉमन छुट्टी दी जाती है. फिर भी लोग अपने घरों में क्या करते हैं, उपवास रखते और भगवान श्री कृष्ण के कीर्ति का गान करते दिन भर, और फिर शाम को सारे मंदिरों में आ जाते हैं, मध्य रात्रि तक जागरण करते हैं और कृष्ण स्मरण करते रहते हैं. Thus they fix their minds on remembering the Lord, His transcendental birth and activities. भगवान का स्मरण करना, उनके जन्म और कर्म जो दिव्य हैं उनके बारे में चिंतन. Although the scriptures enjoin that one should remember the Lord always, festival days like Janmashtami are especially auspicious. हालांकि शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, सतत स्मरण करना चाहिए. जन्माष्टमी जैसे विशेष उत्सव त्योहार बहुत ही पुण्य या शुभ होते हैं. By reducing eating, sleeping and other bodily functions as far as possible, while at the same time increasing chanting and hearing, one's Krishna consciousness is greatly enhanced. खाना सोना इन कार्यों को थोड़ा कम करके श्रवण कीर्तन के कार्यों में जोर देकर कृष्ण की भावना जो है वो बड़ी वृद्धिंगत हो सकती थी. Srila Prabhupada has advised us that as aspiring Vaishnavas, we always remain careful to observe all of the important festival days. Prabhupada ji ने हमें सलाह दी है कि वैष्णव बनने के हम जो इच्छुक हैं, हम सबको ये महत्वपूर्ण जो त्योहार होते हैं वैष्णवों के, उसे जरूर सावधानी पूर्वक मनाना चाहिए, ढंग से मनाना चाहिए. While I had been in India, Vishnujan had been making a yearly pilgrimage, not to India but to ISKCON's India replica, New Vrindavan. तो जब मैं भारत में था, मेरा मित्र विष्णुजन वो क्या करते हैं, हर साल में एक बार जन्माष्टमी के लिए कहाँ जाते हैं, भारत की प्रतिकृति जो अमेरिका में निर्माण की गई है वो थी न्यू वृंदावन, उस कम्युनिटी में वो जाते. From the very beginning of ISKCON's formation in America, Prabhupada had envisioned the development of a worshipable place of Krishna's holy pastimes. अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का प्रचार शुरुआत के दिनों में करते समय ही, ISKCON के पहले दिनों में ही प्रभुपाद जी ने ऐसा दूरदृष्टि रखा था कि यहाँ पर भी कृष्ण के लीलाओं को आराधना करने वाली जगह होनी चाहिए, यानी वृंदावन बसना चाहिए अमेरिका में कहीं ना कहीं. He had specifically included this aim as one of the objectives of ISKCON when it was formed. इस भगवान के लीला स्थलियों का निर्माण करना, ये उन्होंने ISKCON के 7 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बनाया था. To erect for the members and for the society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna. भक्तों के लिए और सामान्य जनों के लिए भी, समाज के सभी लोगों के लिए हमें कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला स्थलियों का निर्माण करना है. कौन से नंबर का उद्देश्य है ये 7 में से? 5th. When 2 of his disciples, Kirtanananda Swami and Hayagriva Das, had written him about some rural land which they had acquired
Srila Prabhupada took the opportunity to encourage the development of a transcendental community, which he named New Vrindavan. प्रभुपाद जी के दो शिष्य कृष्ण कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव प्रभु, ये जब प्रभुपाद जी को खत में लिखे कि यहाँ गांव में एक बड़ी जमीन हमको मिल रही है, तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, उसे आप एक दिव्य वैष्णव समुदाय का निर्माण करने के लिए उपयोग में लाओ, विकास करो उसका नाम देना न्यू वृंदावन, नव वृंदावन. Through letters and personal visits, Prabhupada guided Kirtanananda Maharaj and his small group of helpers in constructing a replica of the original Vrindavan where Krishna had made his divine descent and where Srila Prabhupada had lived for many years. तो प्रभुपाद जी ने अपने खतों के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से वहां भेंट देकर कीर्तनानंद महाराज और उनके छोटे से समुदाय को मार्गदर्शन दिया एक वृंदावन की रेप्लिका, प्रति वृंदावन बनाने में, जहां कृष्णा अवतरित हुए थे और प्रभुपाद जी भी बहुत सालों तक वास किए थे. ऐसा ही वृंदावन उन्होंने कहाँ निर्माण करा दिया? अमेरिका में, वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों में. उसका नाम क्या था? नव वृंदावन. लाइफ इन न्यू वृंदावन शुड बी सिंपल. प्रभुपाद जी कहते यहाँ का जीवन बड़ा सरल रखो, बेस्ड ऑन टिलिंग द फील्ड्स, प्रोटेक्टिंग द काउस. खेत जोतो और गो माता की सेवा करो, रक्षा करो. As far as possible, the devotees were to live self-sufficiently. जितना हो सके उतना भक्तों को स्वयं पूर्ण जीवन अपनाना चाहिए. Please read on the screen. Depending upon nature's provision for all their needs. निसर्ग के द्वारा जो भेंट आती है, अनाज, पानी, दूध, फल, सब्जी, तरकारी, मसाले, इसी पर हमें अपना जीवन आधारित रखना चाहिए. And just like its Indian prototype, New Vrindavan could have many temples. जैसे वृंदावन में अगर हम जाते हैं, वहाँ 5000 से ऊपर ज्यादा मंदिर है कृष्ण के. कितने? 5000 के ऊपर. अभी तो और भी ज्यादा है. तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ऐसे ही न्यू वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हो कृष्ण के, अलग अलग पहाड़ियों पर अलग अलग मंदिर, वहां अलग अलग समुदाय बस रहे हो. तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी. The residents, New Vrindavan could have many temples. Through their intense devotional service, the residents of New Vrindavan would be able to experience a transformation, not only within themselves, but within the very land upon which they were dwelling. अगर तीव्रता से भक्ति में जुड़ेंगे, तो यहाँ नव वृंदावन में रहने वाले जो भक्त थे, वो न केवल अपने हृदय में परिवर्तन अनुभव करेंगे, उस जगह पर जहाँ रहने के लिए आए हैं, उस जगह को भी बहुत सुंदर रूप से बदलता हुआ देखेंगे. Prabhupada assured them that if they continued in their efforts to erect a transcendental village, the spiritual potency would be equal to that of its model. प्रभुपाद जी ने उनको आश्वस्त किया था कि अगर एक दिव्य गांव का निर्माण करते हो आप इस जगह पर, तो भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो उतनी ही मात्रा में प्रकट होगी जितनी वो पहले वाले आदर्श वृंदावन में मौजूद है. Thus, visitors coming to New Vrindavan would derive the same purification as Indian pilgrims had been receiving for centuries when visiting Vrindavan. तो भारत के लोग जब भारत में वृंदावन जाते हैं, उन्हें जो जैसा पुण्य प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही अमेरिका के लोगों को न्यू वृंदावन में आकर प्राप्त होगी. वहीं अमेरिका में ही एक प्रति वृंदावन को भेंट देकर. Any reflections? हमें सारे वैष्णव त्योहारों को बहुत ही सावधानी पूर्वक ढंग से मनाना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, साल दर साल आता रहता है जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डेज आचार्यों के, और हमको लगता है आज का भी एक नॉर्मली डे है, बस बीच में थोड़े फूल अर्पण करने और प्रसाद खाने जाना है. तो वी मेक इट कैजुअल. तो हमें ऐसे नहीं करना है. हर वैष्णव तिथि त्योहार को ढंग से मनाना है. कभी कभी हमारे आजू बाजू के भक्त प्रेम से नहीं कर रहे काम, तो हमको लगता है कि मैं भी क्यों करूं. ऐसा नहीं. वी शुड रिमेन इंटेंस इन आवर डिवोशन.
जैसे ही भक्तों को लैंड मिला, प्रभुपाद जी ने क्या उपयोग करने के लिए कहा उसे? फार्म कम्युनिटी बसाओ, गो सेवा कराओ, स्वयं पूर्ण और स्वाभाविक जीवन, प्राकृतिक जीवन जियो। ऐसा नहीं कि लैंड मिल गया तो चलो कंक्रीट डालो, सीमेंट डालो उसके अंदर, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े करो, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स, फिर वो फ्लोर स्पेस को बेचो और पैसे कमाओ। ऐसे हम काम नहीं कर रहे। ज़मीन को कंक्रीट से कवर करना, सीमेंट से कवर करना बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं हम लोग। जो अच्छा उपजाऊ ज़मीन है वो बर्बाद करते जा रहे हैं। आगे चल के खाने के लिए क्या बचेगा? पुणे से लेके लोनी तक ऑलरेडी लैंड खत्म हो चुका है एग्रीकल्चर। अभी लोनी के आगे हमारा है थोड़ी ही देर बाद। यहाँ पे भी लोग लैंड खरीदते जा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? सीमेंट भर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं पूरा। फिर खाने को क्या मिलेगा कुछ दिनों के बाद? नट बोल्ट्स। क्या खाएंगे हम लोग? यस। रामकृष्ण महाराज ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में ऐसा जन्माष्टमी होने से कुछ वैष्णव के उनका ड्यूटीज को छोड़ के भक्ति में जुटते हैं। इम्पोर्टेंस है कि हम भी फेस्टिवल्स को इम्पोर्टेंस देने का एक उदाहरण दे रहे हो कि कैसे इंडिया में, भारत में लोग जन्माष्टमी आती है तो छुट्टी दे नहीं रहे गवर्नमेंट, फिर भी लोग छुट्टी मार देते हैं ऑफिस में और घर में बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसे फैमिलीज हैं वो इतना धूमधाम से मनाते हैं अपने ही घरों में जन्माष्टमी को, और फिर शाम को रात को जाते हैं, पास में कोई मंदिर ढूंढ के निकालते हैं कृष्ण का, उधर जाके जागरण करते हैं और बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाते हैं लोग। इट्स अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि भारत में जन्माष्टमी को पब्लिक हॉलीडे नहीं है। ये बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? कभी कभी इतने तुच्छ जीवों के जन्म के दिवस पे छुट्टियां मना रहे लोग, जिनका चरित्र संदिग्ध है और योगदान जो है वो सही में सबके हित का नहीं है, कुछ एक पक्ष के हित का है। यहाँ कृष्ण जो स्वयं भगवान है, उनके जन्माष्टमी को, रामनवमी को, अभी रामनवमी शायद पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है, लेकिन जन्माष्टमी अभी भी नहीं है। तो आई एम होपिंग समडे सम ऑफ यू विल गो इनटू गवर्नमेंट सर्विस एंड चेंज इट। छुट्टी रहना चाहिए जन्माष्टमी को। हाँ, 2 दिन का रोबा वेडनेसडे कोई छुट्टी चाहिए ताकि अच्छे से मना सके। अपना इधर हाँ पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है हमारा, हमको जब चाहिए छुट्टी मार देते हैं हम लोग हमारे त्योहार के अनुसार। दिस इज द ब्यूटी एक्चुअली, टू बी सेल्फ सफिशिएंट। बाहर के सिस्टम पर आश्रित रहने से फिर आपको उनके तरीके से जीना पड़ता है। बाहर स्कूल में कुछ जन्माष्टमी नहीं, कुछ प्रोपाल अपीयरेंस नहीं। इंटरेस्टिंग। रघुनंदन। हाँ, भक्ति तीर्थ महाराज ने गीता नगरी में शरीर इसलिए छोड़ा ताकि वो सिद्ध कर सके कि प्रभुपाद जी ने जितने भी कम्युनिटीज बसाए हैं, भले वो बाहर के देशों में क्यों ना हो, वो ओरिजिनल धामों से अभिन्न है। यहाँ शरीर छोड़ने पर व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसे निर्माण किया। तो ये जो पॉइंट बोला जा रहा था कि भक्त अगर तीव्रता से भक्ति करते हैं तो पाश्चात्य जगत के भी किसी प्रदेश को वो ओरिजिनल वृंदावन जैसा आध्यात्मिक शक्तिशाली बना सकते हैं, वो दिखाना चाहते थे भक्ति तीर्थ महाराज। हाँ, वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट जस्ट अ फिजिकल प्लेस। जिस चेतना में हम जी रहे हैं वो हमारी चेतना बनाती है वैसा वातावरण। अभी भी है ना वृंदावन कम्युनिटी, अच्छा है, पहले जितना वाइब्रेंट नहीं है लेकिन है, अच्छा है। फिर भी प्रभात के समय या प्रभात के जस्ट जाने के बाद जो उनका उत्कर्ष हुआ था बहुत ही तगड़ा था। फिर बाद में टिपिकल लीडरशिप क्राइसिस आ गए, तो उसके कारण धीरे धीरे वो कम्युनिटी खराब हो गया। सबसे बड़े 3 गड़बड़ उन्होंने किए। चाइल्ड अब्यूज गुरुकुलों में, दूसरा है डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स Prabhupada's own disciples and the bigger family of ISKCON by claiming some kind of specialization or superiority. वैष्णव अपराध। और तीसरा
ब्रेकिंग फैमिलीज, वर्ण और आश्रम पर ढंग से काम नहीं करना, तो उसके कारण बड़ा कांड हो गया. And they brought in some deviations, philosophical deviations, to get absorbed in mainstream American society. उन्होंने ड्रेस कोड चेंज कर दिया, कुछ ऐसे रिचुअल्स चेंज करने लगे लोग. फिर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर चर्चा होने लगी. बहुत कुछ हुआ है उस कम्युनिटी में. तो टिपिकल क्राइसिस इन इस्कॉन. और कोई? तो आपको भी लैंड मिलता है तो क्या करेंगे आप? कंक्रीट डाल देंगे उसमें, है ना? क्या करेंगे? गौशाला, फार्म कम्युनिटी, गुरुकुल, एग्रीकल्चर. प्लांट्स डालेंगे. और मंदिर वो तो भूल गया, कृष्ण का मंदिर. हाँ जी. हाँ, क्रिएटिंग ट्रांसेंडेंटल प्लेसेस फॉर पास टाइम्स ऑफ कृष्णा, वो करेंगे हम लोग अच्छे से. आप भी प्रार्थना कीजिए. कल ही मैं एक जगह देख के आया हूँ उड़े में, बहुत मन में भा गई मेरे को वो जगह. 3 करोड़ रुपए चाहिए, लाएंगे आप? तो बहुत ही सुंदर है. आप सब लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान भेजेंगे कहीं से. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्. श्री प्रभुपाद की जय. समवेत भक्तवृंद की जय. गौर प्रेमानंदे.